لائٹیں بد دعائیں کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس خطے میں مسجد ہوتی ہے اس کے اگل بغل کے جو 40 گھر ہوا کرتے ہیں وہ مسجد کا پڑوسی ہوا کرتا ہے. ان 40 گھروں میں سے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا، مسجد کا مؤذن پکارتا ہے حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے نوجوان چائے میں مصروف رہتے ہیں، اس مسجد کے ارد گرد رہنے والی گھریں باتوں میں مصروف رہتا ہے، اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگ اپنے کام کاج میں مست رہتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد کی اینٹیں ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہے، مسجد کا ممبر ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، مسجد کا در و دیوار ان کے لیے بد دعا کرتا ہے. پھر مسلمانوں کا رونا کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے، ہمارے باغوں میں سیب نہیں ہے، ہمارے باغوں میں اخروٹ نہیں ہے، ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب نہیں ہے. یہ نتیجہ ہے کہ تم نے اللہ کے گھروں کو بنا کر ویران کر دیا ہے، تم نے اللہ کے گھروں کو بنا کر کے ویران چھوڑ دیا ہے. یہی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلمانوں پر منڈلا رہا ہے. کہیں فلسطین کے نام پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں جو ہے مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے مزارات پر جو ہے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو داڑھیوں کے نام پر پیٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمان مسافروں کو دربدر کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان نوجوانوں کو کی قتل عام کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہ صرف ہمارا کیا ہوا دھرا ہے، یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے کہ جب ہمارا گناہ زیادہ ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. ورنہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہم سے پہلے کے جو مسلمان تھے وہ کس قدر قوت و حوصلہ والے مسلمان تھے، کس قدر نمازی مسلمان تھے، کس قدر اپنے سجدوں سے اللہ کی زمین کو آباد کیا کرتے تھے. کیا آپ نے نہیں سنا صلاح الدین ایوبی کا نام کہ اللہ کی زمین کو سجدوں سے کیسے آپ نے آباد کیا؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا تاریخ میں نور الدین زنگی کا نام جنہوں نے اللہ کی زمین کو کیسے سجدوں سے آباد کیا؟ کیا آپ نے خلیفہ اول ابو بکر کا نام نہ سنا؟ کیا ہم نے حضرت عمر فاروق کا نام نہ سنا؟ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے سجدوں کی بدولت کائنات پر فتح کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت سر کو جھکانا نہیں چاہتے ہیں اور پوری کائنات پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ کہاں ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. جب تک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھک نہ جائے، جب تک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سامنے رکھ کر رب کی ربوبیت کا اقرار کر کر، رب کی اقراریت اور رب کی اثباتیت کا اقرار کر کے اللہ کی گھروں میں آنا جائے گا، تب تک اللہ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ قیامت کے آثار ہے، یہ جو ہے اس ہولناک منظر کا آثار ہے جس ہولناک منظر میں انسان کو ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، قطرے قطرے کا حساب دینا پڑے گا. اور کائنات کا چپا چپا چھان کر دیکھ لے، کائنات میں بسنے والے 20 ارب مسلمانوں کو دیکھ لے، یا جو ہے 18,000 مخلوقات جس میں غیر قوم بھی رہتے ہیں، ان تمام سے پوچھ لے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہے. ایک قوم کہے گی ہم مریں گے، ہمیں جلا دیا جائے گا. ایک قوم کہے گی ہم مریں گے، ہم کو مٹی میں ڈال دیا جائے گا. ایک قوم کہے گی ہم مریں گے، ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. مگر مسلمانوں، بعث بعد الموت پر ایمان والوں، بعث بعد الموت پر یقین رکھنے والوں، ہم وہ قوم ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اس مسلمان قوم میں پیدا فرمایا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بھول مت جانا مسجدوں کو ویران کر دیے تمہیں جواب نہ دینا پڑے گا. اس غلط فہمی میں مت رہنا، شراب پیتے رہو اور تم یہ بھول جانا کہ مجھے حساب نہ دینا پڑے گا. یاد رکھنا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے مسلمان، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اے میری توحید کا اقرار کرنے والا، اے میرا جو ہے چرچا کرنے والا، اے میرا نام
नाम लेने वाला मेरा बंदा, तुझको मैंने दुनिया में 50 साल की जिंदगी दी थी, 40 साल की जिंदगी दी थी, 35 साल की जिंदगी दी थी, तुझे औलाद जैसी अजीम नेमतें दिया था, खेती जैसी अजीम नेमत दिया था, हाथ जैसा अजीम नेमत दिया था, आंखें जैसी अजीम नेमत इनायत किया था, जिस्म जैसा अजीम नेमत इनायत किया था, मगर बताओ तो सही तूने मेरे लिए क्या किया है। तूने मेरे लिए अपना घर तो बनाया था, मेरा घर, मगर मेरे घर को आबाद करने के लिए तूने क्या किया है। उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? हाँ ही अफसोस के अलावा हमारे पास कोई जवाब ना होगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ कौम, मैंने शराब को तुम्हारे लिए हराम किया था, तूने हलाल समझकर शराब को पिया करता था, बताओ तूने हमारे लिए क्या किया। ऐ कौम बताओ, तेरे लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की सरजमीन पर पत्थरें खाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लहू लहान किया गया है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक पर वजड़ियां डाली गई है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक पर पट्टे डालकर अरब की धरती पर आपको घसीटा गया, हजरत बिलाल के छाती पर पत्थर रखकर सीने पर चढ़ा गया है। बताओ इनकी कुर्बानियां क्या तुमने याद रखी है? तुम तो सिर्फ जुबानी कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या तूने नबी कौनैन का हक अदा कर दिया? उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, अफसोस के अलावा कोई जवाब नहीं होगा। जरा तसव्वुर तो करो मेरे प्यारे, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, जरा तसव्वुर तो करो उस खतरनाक हौलनाकियों का जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे के ना होंगे, बेटे बाप के ना होगा, और जो बेटी माँ की ना होगी, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त का ना होगा, अहबाब अहबाब के ना होंगे, रिश्तेदार रिश्तेदार का ना होगा। ऐसी खतरनाक आलम में रब का जब पूछ होगा, हाथ भी गवाही देगा। वो अल्लाह है ना, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर उसकी शान है, तुइज़्ज़ु मन तशा उसकी शान है, तुज़िल्लु मन तशा उसकी शान है, युज़िल्लु बिही कसीरा उसकी शान है, यहदी बिही कसीरा उसकी शान है। सब तो रब की शान है। रब अगर चाहे तो पत्थरों में भी जुबान पैदा कर दे, अल्लाह अगर चाहे पत्तों में भी जुबान पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्मों की तरफ, हमारी वजूद की तरफ नजर फरमाएगा, वजूद से आवाज आएगी, हाथ आवाज देगा, ऐ परवरदिगार तूने इसको हाथ दिया था मुसलमानों की मदद करने के लिए, परवरदिगार तूने इसे हाथ दिया था हलाल कमाई कमाने के लिए, हलाल कमाई के जरिए से घर वालों की परवरिश करने के लिए, मगर मेरे रब इसने इस हाथ से हराम कमाई कमाया है। ऐ मेरे रब इस हाथ से इसने मुसलमानों को तकलीफ दिया है, मेरे रब इस हाथ से इसने चोरी किया है। जुबान कहेगी परवरदिगार तूने इसको जुबान दिया था मुस्तफा की सनाखाई के लिए, मुस्तफा की तारीफ करने के लिए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हमद, मुस्तफा करीम की नात पढ़ने के लिए, मगर इस जुबान से ये गाना गाया हुआ नजर आता था। कभी सलमान के गाने पर जाया करता था, कभी शाहरुख के गाने पर गाया करता था। ऐ परवरदिगार तूने इसे पैर दिया था, ये अजीम नेमत मस्जिदों को जाने के लिए, लेकिन ऐ रब्बे कुद्दूस इसने इस पैर का गलत इस्तेमाल किया है, और ये बजाय मस्जिद के नाच गाने देखने जाया करता था, बजाय मस्जिद के शराब के भट्टियों में जाया करता था, बराए मस्जिदों के जाने के, और जो है जना के अड्डे कायम किया करते थे। उस वक्त बताओ हमारा और आपका क्या हाल होगा? रब का हुक्म होगा जहन्नमी लिबास पहना दिया जाए, जहन्नमी जूते पहना दिया जाए, इनको पकड़ करके जहन्नम में डाल दिया जाए। जरा तसव्वुर तो करो वो जहन्नम कितना खतरनाक होगा, वो जहन्नम इतना खतरनाक होगा। हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम का जो सबसे ज्यादा हल्का अजाब है, जहन्नम का जूता पहना दिया जाएगा इंसान को। जब इंसान जहन्नम के जूते को पहनेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान का दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे कि गरम कढ़ाई में तेल कड़का करता है। ऐसे ही जहन्नम की हल्का अजाब, जब जहन्नम का जूता पहनाया जाएगा, इंसान का भेजा ऐसे ही खौलेगा। आप जरा तसव्वुर करो, आगे आका इरशाद फरमाते हैं प्यास की शिद्दत इतनी होगी कि इंसान को जब पानी दिया जाएगा, कान का गरम पीठ पिलाया जाएगा,
पिघला हुआ पानी, गर्म पानी पिलाया जाएगा, जिसकी वजह से गले की अतड़ियां बाहर निकलेंगी। फिर कहेगा परवरदिगार रहम फरमा। 50,000 साल के बाद रब का ऐलान होगा कि तूने मेरी नाफरमानी की है, तुझे हमेशा जहन्नम में रहना है। भूख की शिकायत करेंगे जहन्नमी। रब फरमाएगा कि उसे खाना दिया जाए, और ऐसा खाना दिया जाए, एक फलदार कांटेदार फल दिया जाएगा, जिसको खाने से कांटा हुलकूम में लटकेगा, हुलकूम में अटकेगा, इंसान बेचैन और बेकरार होगा। बताइए, ये सब सहने के लिए अगर हम तैयार हैं तो शौक से नमाजें छोड़े, अगर हम सहने के लिए तैयार हैं तो शौक से रोजा छोड़े, अगर हम सहने के लिए तैयार हैं शौक से झूठ बोले, अगर हम सहने के लिए तैयार हैं शौक से चुगली करे, अगर हम सहने के लिए तैयार हैं शौक से एक दूसरे की गीबत करे, एक दूसरों को आपस में लड़ाया करे, तो यकीनन हमारा जिस्म सहने को तैयार नहीं। आगे सुनते जाए, मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम के अजाब में इंसान का खून जहन्नम में इतना बहेगा कि अगर कश्ती छोड़ दिया जाए तो कश्ती भी उस खून में बहकर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। मेरे प्यारे, कब तक ये जवानी है, कब तक ये जिस्म है, कब तक ये ताकत है, कब तक ये दौलत है, कब तक ये शोहरत है, कब तक ये इज्जत है? ये सब कुछ मलियामेट होने वाला है। शायद ने पहले ही कह दिया था, आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये इबरत की जहां है कोई तमाशा नहीं। आज अगर जिधर देखे नौजवानों को जवानी पर नाज है, पैसे वालों को पैसे पर नाज है, हर एक को अपनी अपनी जवानी, अपनी अपनी इख्तिदार, अपनी अपनी हैसियत पर नाज है। और यही वजह है कि हम हर जगह जलीलो ख्वार होते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह जलीलो ख्वार होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कौम पर हमने बरसों से हुकूमत किए हुए आए हैं, आज वो कौम हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, आज वो कौम हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। वजह क्या है? वजह यही है इख्तिलाफ, वजह यही है इंतशार, वजह यही है हम मुत्तहिद नहीं है, वजह यही है हम अल्लाह की तरफ झुकने को तैयार नहीं है, वजह यही है कि गैर, एक मिसाल देकर आयत करीमा को मैं समझाऊं। एक दौर था जिस दौर में लोगों ने देखा, कुछ कौम ने देखा, कुछ मानने वालों ने अपने अपने एतबार से मान कर देखा कि उन्होंने देखा कि बाबा रे आग तो बड़ा पावरफुल चीज है, आग बड़ा पावरफुल चीज है, इसलिए कि आग के अंदर वो तासीर है कि वो बड़ी से बड़ी लकड़ियों को जलाकर खाक कर देती है, बड़े से बड़े बिल्डिंगों को निस्तो नाबूद कर देता है, सफा हस्ती से मिटा देता है। लिहाजा आग हमारा खुदा है। मैं इशारा दे रहा हूँ, इशारा समझने के लिए, इशारों का अक्लमंदों के लिए इशारा काफी। कहा कि आग हमारा खुदा है, उसने आग को खुदा बना लिया। फिर एक दौर गुजरा, फिर एक जमाना चला, आग की परस्तिश होती गई, लोग मजूसी कहलाए, कोई यहूदी कहलाए, कोई जो है ईसाई कहलाए, नाम बदलता गया, पुजारी बदलते गए, नाम बदलता गया। दौर गुजरा, गुजरने के बाद फिर कुछ जानने वाले लोग आए, कुछ अक्ल वाले लोग आए, कुछ पढ़े लिखे लोग आए। उसने देखा कि आग से ज्यादा पावरफुल चीज तो पानी है, क्योंकि पानी की चंद कतरे आग को बुझा देती है। लिहाजा आग खुदा नहीं हो सकता है, पानी खुदा है। उसने आग को छोड़ा, पानी को खुदा बनाना शुरू कर दिया। अब दो तरह के लोग हो गए, कुछ आग के पुजारी हो गए, कुछ पानी के पुजारी हो गए। फिर कुछ जमाना गुजरा, फिर कुछ दौर गुजरा, फिर उससे ज्यादा जानकार लोग आए, उससे ज्यादा दयालु लोग आए, उससे ज्यादा साइंटिस्ट आए, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आए। उसने कहा कि पानी भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि पानी से ज्यादा पावरफुल चीज, पानी से ज्यादा जो है, जो पावरफुल चीज है, पानी भी किसी का खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि पानी से भी ज्यादा पावरफुल चीज जो है कोई दूसरी है। उसने किसी दूसरी लोहे को बनाया कि आग लोहे को पिघलाता है और लोहा पानी में ठंडा हो जाता, लोहा को कोई पिघला नहीं सकता, लिहाजा लोहा पावरफुल चीज है। किसी ने लोहा को खुदा माना। तीन तरह के लोग हो गए। हजरत दाऊद के कुछ कौमों ने लोहा को मानना शुरू कर दिया, लोहा पर फातिया देना शुरू कर दिया, लोहा के सामने मुरादे मांगना शुरू कर दिया, लोहा के सामने शिर्क व बिदअत के
खुराफात फैलानी शुरू कर दी। इस तरह से दुनिया चलता रहा। चलते चलते फिर लोगों ने गौर किया पानी भी खुदा नहीं है, सूरज तो इससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सूरज की चंद किरणें जब पानी पर गिरती है पानी को भी जमीन सफा हस्ती से मिटा देती है, पानी सूख जाया करती है, खुश्क हो जाया करता है, लिहाजा सूरज सबसे बड़ा खुदा है। फिर सूरज को खुदा बनाने लगा। फिर जो है दुनिया देखा, कुछ जमाना आया, कुछ दौर गुजरा, कुछ लोग आए, कहा सूरज भी कैसे खुदा हो सकता है। 1400 साल 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को आमना की गोद से अब्दुल्ला के दुलारे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस धरती पर तशरीफ लाए, उसने उंगली का इशारा करके सूरज को ही दो टुकड़ा कर दिया, उंगली का इशारा करके चांद को ही दो टुकड़ा कर दिया। कायनात ने जब देखा हैरत में पड़ गया। अब तक तो मैं सूरज को खुदा कहता था, आग को खुदा कहता था, लोहा को खुदा कहता था, पानी को खुदा कहता था। इससे भी बड़ा तो यह है कि एक ऐसा अजीमुशान इंसान तशरीफ लाया है जिसकी शान यह है कि वो खुदा को ही दो टुकड़ा कर देता है, सूरज को ही दो टुकड़ा कर देता है, चांद को ही दो टुकड़ा कर देता है। दुनिया हैरत में पड़ गया कि अब खुदा होगा तो कौन होगा। तो अरब की धरती में मोहम्मद अरबी ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, मैं भी खुदा नहीं हूँ, मुझे जिस रब ने बनाया है, जब मेरी ये शान है कि मैं सूरज को दो टुकड़ा कर सकता हूँ, पहाड़ को सोना बना सकता हूँ, दरख्त को अपने पास बुला सकता हूँ, कंकरियों में जुबान पैदा कर सकता हूँ, और जो है जालिमों और काफिरों के जो है दिलों में रौब पैदा कर सकता हूँ, जब मेरी ये शान है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे बनाया है, उस रब कदीर का आलम क्या होगा। जिस रब की शान है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। वो रब बेनियाज है, वो रब अकेला है, वो रब का ना कोई बाप है, वो रब न किसी का बाप है, वो रब का ना कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, उस रब का ना कोई बीवी है, वो रब न किसी का जो है चाचा भतीजा रिश्तेदार है, वो रब तो तन्हा है। तो उस रब की ताकत का आलम क्या होगा। वही रब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ बंदो खासकर हम ही तेरी मदद करते हैं, खासकर हम ही इबादत के लायक हैं। हम कहते हैं मौला तू ही इबादत के लायक है, तू ही बंदगी के लायक है, तू ही हमारी मदद करेगा, परवरदिगार तू ही हमारी मदद करेगा। मगर बंदा जब रब की बारगाह में आए तब तो अल्लाह की कामयाबी नमाजों के अंदर है। अब बंदों की कामयाबी नमाजों के अंदर है, बंदों की कामयाबी की राज नमाजों में छुपी है, अल्लाह के घरों में छुपी है। और इंसान रोजी के मारे कभी जो चौराहों पर जो है डकैती करता हुआ नजर आता है, फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि वह कामयाबी तो और जगह तलाश कर रहा है। अरे प्यारे, तुम्हारी कामयाबी मस्जिदों में है, तुम्हारी कामयाबी सजदा जबी करने पर है, तुम्हारी कामयाबी रब की बारगाह में है। तू आजा रब की बारगाह में, देखना कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। तू आजा खुदा की बारगाह में, मुसीबतें तुमसे दूर हो जाएगी। तू आजा खुदा की बारगाह में, औलाद तुम्हारी नेक हो जाएगी। तू आजा खुदा की बारगाह में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हर इंसान कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, हर इंसान कहता है हम खुदा के बंदे हैं, हर इंसान कहता है हम जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने वाले हैं, हर इंसान कहता है, हर मुसलमान कहता है। एक रैली निकलेगी, आप मुसलमान बच्चों को देखें, मुसलमान जवानों की तरफ गौर करें, मुसलमान बूढ़ों की तरफ गौर करें, अपनी कौम की तरफ गौर करें, और कौम के जुबान से यह नारा निकलता है रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम कहते हैं पहले तो छोड़ चुके हो मियाँ, फिर कहते हो नहीं छोड़ेंगे। ना छोड़ने का क्या मतलब है। जो कौम दाढ़ियां कटवाने में, जो कौम अपने आप को मुसलमान का दावा करती है, जो कौम कहती है हम मुसलमान है, जो कौम कहती है हम इज्जतदार हैं, जो कौम कहती है हम नमाज पढ़ने वाले, जो कौम बुराइयों को रोकने आया था, आज वही कौम बुराइयों की दावत दे रहे हैं। जो कौम जो है बुराइयों का दरवाजा बंद कराने आया था, आज वही कौम, कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि बेहतरीन, तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। हुजूर के उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा गया। क्यों कहा गया? उसकी वजह फरमा रहा है रब, तामुरूना बिल मारूफ, इसलिए कि तुम लोगों को भलाइयों की दावत देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोक रहे हो, तब हम बेहतरीन उम्मत है। लेकिन बताइए आज हम बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक हैं?
کیا ہمارے اوپر یہ آیت کریمہ صادق ہو رہی ہے؟ کسی وجہ سے ہو رہا ہوگا، مگر ہمارا جو کردار ہے، موجودہ صورت جو حال ہے، ہم برائیوں کو مٹانے آئے تھے، آج ہم خود برائیاں پھیلا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، جو قوم کہتی ہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ قوم ذرا توجہ کرے کہ وہ قوم داڑھیاں کٹواتی ہے۔ داڑھی رکھنا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ قوم مہینے میں 4 مرتبہ کم سے کم داڑھی تو کٹواتی ہوگی، اور ایک بار داڑھی کٹوانے میں کم سے کم 100 روپیہ تو خرچ کرتا ہوگا۔ مہینے میں اگر بندہ 4 مرتبہ داڑھی چھلوائے، 4 مرتبہ نبی کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کرے، تو 400 روپیہ مہینے کا خرچ کرتا ہے۔ اب سال پر ڈیوائیڈ کر لے کہ سال میں تقریباً 36 یا 3800 روپے جو ہے وہ صرف اسلام کی ایک سنت کو مٹانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے ہم سچے مسلمان ہیں، اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے ہم پکے مسلمان ہیں۔ ارے جس داڑھی رکھنے کے لیے حسنین کریمین نے کرب و بلا کی میدان میں جانیں قربان کر دی ہے، جس نماز کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جانوں کی قربانی پیش کر دی، جس نماز اور جس دین کی، جس جھوٹ کے خلاف، غیبت کے خلاف، چغلی کے خلاف، ہر قسم کی مہلک بیماری، ہر قسم کی مہلک خرابیوں کے خلاف امام حسین حضور کے پورے خاندان نے کرب و بلا کی زمین پر، ننھا چھوٹا بچہ معصوم علی اصغر بھی قربان، قاسم کی جوانی بھی قربان، ہم شبیہ مصطفیٰ 18 سالہ کڑیل جوان، حضرت علی اکبر کی جوانی قربان، حضرت جو ہے عباس کا بازو کٹ گیا، قربان ہو گیا، پورا خاندان لٹ گیا۔ آج کو قوم کہہ رہی ہے ہم مسلمان ہیں، تو کہاں کے مسلمان ہیں؟